आप सुन रहे हैं रेडियो टशन, जो छू ले आपका मन। भारत को जीतने के लिए चाहिए केवल 4 रन। अगली गेंद उठाकर ऊंचा लंबा स्ट्रोक, ये दर्शक दीर्घाओं में जाकर गिरेगा। जोरदार जवाब, महेंद्र सिंह धोनी का छक्का और भारत विश्व विजेता। आप सुन रहे हैं रेडियो टशन, जो छू ले आपका मन। इस समय कार्यक्रम चल रहा है खेल की बात रेडियो टशन के साथ। इस कार्यक्रम के किसी भी हिस्से में आपसे क्रिकेट पर आधारित एक प्रश्न पूछा जाएगा, जिसका कमेंट बॉक्स में आप सही उत्तर दे सकते हैं। सही उत्तर देने वाले को हमारी ओर से आकर्षक पुरस्कार दिए जाएंगे। धन्यवाद। गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप? मैं हूं आपका दोस्त अमन और आप सुन रहे हैं रेडियो टशन, जो छू ले आपका मन। इंडिया is completely being blown by New Zealand on their home soil. It was New Zealand who won the match quite easily, comprehensively, and what I can say, a thumping victory over India. It was very difficult to guess at the halfway stage who is going to win, but India's bowling let down, and that's how India defeated heavily, or I should say badly, in the first fixture of the 3-match ODI series. You are tuned into program Khel Ki Baat Radio Tashan ke saath, where it's happening very first time in the history of the show of this channel that we are conducting this program with 2 of the guests. One is your known Mr. Ram Kishan ji, and second one, a very good knowledge having of cricket. He's been, what I can say, memory of records is being held by him. Name is Samrat. He's always sitting on the cricket rath. So let's start the discussion with these two guys by summarizing you of the summary of the first ODI between India and New Zealand. So in the first fixture, early morning, India were put into bat by New Zealand after they won the toss. Good start given by the openers. What I can say, brilliant partnership of 124 between Shikhar Dhawan and Shubman Gill. Gill played actually his part for his 50 runs. Little slow, I can say, but nevertheless, it was need of the hour. That is what is being done by him beautifully. Shikhar Dhawan, fantastic knock for him, but 2 quick wickets on 124. Then a good partnership between Sanju Samson and Iyer sometime. Iyer versus, what I can say, Pant. But again, it was Iyer and Samson show for a while. Rishabh Pant was not good as we were expecting. Scored 14-15 runs, which is not good in one-day cricket. Sanju Samson was looking good for his 36 of 38. And then it was Surya Kumar Yadav. You were expecting a lot from him, but didn't fire today. 4 runs off just 3 balls with the help of 1 boundary. And Shikhar Dhawan scored 72, if I'm not wrong. As far as Shreyas Iyer is concerned, who batted till the very last minute of the inning, scored 80 odd runs. And not to forget the contribution of Washington Sundar. Quick fire, 30 plus runs actually in just 14-15 balls. So fantastic knock by him. Yes, correct. 16 balls, 37 runs. And that's how India managed to score 306 for the loss of 5 wickets, if I'm not wrong. Or 6? Yes. Okay, 5 wickets. Correct. So it was Lucky Ferguson who took 3 wickets. No, 6 wickets down actually. And Team Saudi was also having 3 wickets. So India, played the 6 batsmen with scoring ability. So that is how the first inning went. And talk about second inning, it was New Zealand cruising at one stage, 88 for the loss of 3. Conway was a dependable player, but didn't fire today. Finn Allen was not good at all. But again, Mitchell was the crap of Umran Malik. That's how 3 wickets fell very early. It was looking that India is going to win this match quite easily. But again, lot to follow. Phillips was there. Tom Latham is there. Williamson, the man
Kane has given away lots of pain as far as Indians are concerned. So that's the match summary for you all. Just 3 wickets, 2 for Umran Malik and 1 for Shardul Thakur, and all the bowlers went wicketless in the first fixture. So let's start the discussion with 2 of our guests. तो समरथ जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। आपके ज्ञान के बारे में कुछ बताने की जरूरत नहीं है। लखनऊ स्पर्श ब्लाइंड स्कूल के प्रोडक्ट हैं ये जनाब। फिलहाल फरीदाबाद या दिल्ली के आसपास कहीं रहते हैं, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। मेरा परिचय ये है कि मैं समरथ प्रसाद आज रेडियो स्टेशन से जुड़ रहा हूँ, जो कि बहुत अच्छा लग रहा है। और लखनऊ स्पर्श इंटर कॉलेज से मैंने इंटर किया, जैसा कि अभी आपने बताया, और फिर उसके बाद लखनऊ यूनिवर्सिटी से मैंने ग्रेजुएशन किया। और इस समय जो आपने कहा कि फरीदाबाद के आसपास रहते हैं, मैं मथुरा में जीवन ज्योति करके एक विद्यालय खुला हुआ है, मैं वहाँ पर इस समय टीचर हूँ हाल फिलहाल में। तो इन्होंने अपने बारे में बताया, बाकी इनके क्रिकेट नॉलेज को आप लोग इनकी चर्चाओं से सुन सकते हैं, वो आपको 2-4 दिनों में समझ में आ जाएगा। नाउ लेट्स स्टार्ट। क्या लगा आपको भारत की वर्षों पुरानी समस्या मिडिल ओवर्स में विकेट ना ले पाने की अभी भी बनी हुई है? कैसे देखते हैं इसको आप? देखिए, ऐसा है कि भारत की जो समस्या है वो मिडिल ऑर्डर तो ठीक है, मिडिल ऑर्डर जल्दी भारत निपटा लेता है, परंतु अगर भारत फंसता है तो कहाँ फंसता है? टैलेंडर्स के आगे। और ये जो आज हुआ कि 88 पे 3, फिर उसके बाद लेथम और विलियमसन जो मतलब कुछ नहीं कर पाई भारतीय बॉलिंग। मिडिल ऑर्डर का जहाँ तक सवाल है आजम सर, तो बात क्या है कि मिडिल ऑर्डर हमारा बैटिंग में विकार है और प्लस बॉलिंग में भी विकार है कि हम लोग ओपनर्स निपटा देते हैं और जो नंबर 3 पे बैटिंग करने आते हैं हम उन्हें निपटा देते हैं, फिर उसके बाद 4, 5, 6 जितने भी आए रन बनाते गए। तो बॉलिंग हमारी समस्या है, जो कि जहाँ तक मेरा ऐसा मानना है कि हालांकि एक्सपेरिमेंट है तो मौके तो देने पड़ेंगे। उमरान मलिक ने बॉलिंग ठीक ठाक की, जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है, तो इसलिए मौके देने चाहिए। तो बॉलिंग और बैटिंग दोनों में समस्या हम मानते हैं। रामकिशन जी, आपकी पहली प्रतिक्रिया, एक अच्छी पार्टनरशिप हुई वो आपको बताना भूल गया मैं, 221 रनों की अविजित पार्टनरशिप। इससे पहले न्यूजीलैंड की जो चौथे विकेट के लिए पार्टनरशिप थी वो 2011-12 के आसपास कभी ऑकलैंड में हुई थी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। गप्टिल और डबलिन में, सॉरी, हाँ, गप्टिल और बोपारा शायद वो 2 बैट्समैन थे। 226 रनों की पार्टनरशिप हुई थी और उसके बाद ये पार्टनरशिप। अच्छा, मॉर्गन इंग्लैंड के साथ था वो, बोपारा और मॉर्गन। जी, ठीक है। अच्छा, हाँ, हम ऑफ एयर इसी पे बात कर रहे थे। बहुत शुक्रिया। ये 2 लोगों के होने से ना ये बड़ा मेरे लिए आसान हो जाएगा कि आपको स्टैटिक्स कुछ गलत नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये दोनों क्रिकेट को बहुत अच्छे से समझते हैं। मैं तो बस थोड़ी कोशिश करता हूँ कि क्या रहा क्या नहीं, बाकी ये दोनों आपको ज्यादा बेहतर समझाएंगे। तो आपकी पहली प्रतिक्रिया, क्या लगा आपको भारत की बॉलिंग देखकर? बैटिंग पर बाद में आ जाएंगे, कुछ खास ऐसा है नहीं, क्योंकि सब ठीक ठाक ही रहा। कुछ चीजें हैं जो चर्चा का विषय बन सकती हैं। देखिए, सर्वप्रथम मेरी अपनी जो राय है, मुझे जो लगा शायद भारत सिराज को खिला सकता था। उनकी जगह शार्दुल ठाकुर की जगह यदि सिराज को खिलाते तो शायद और बेहतर रहता। और तो खैर, बाकी हमने उमरान मलिक को मौका दिया, कोई गलत नहीं आपने किया है। आपने अर्शदीप को खिलाया, बिल्कुल बढ़िया बॉलर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये हो सकता था कि सिराज को चांस देते और तो कुछ आगे विकेटें यदि मिलती, कुछ किस्मत ने भी साथ हमारा और दिया होता तो शायद नतीजा कुछ और होता। और दूसरी बात एक और कहना चाहूँगा, हमारी बॉलिंग से ज़्यादा उनकी बैटिंग को क्रेडिट देना पड़ेगा। जो टॉम लेथम ने जो पारी खेली, वास्तव में अविस्मरणीय पारी थी, वो अविश्वसनीय पारी। जितनी तारीफ की जाए उतनी कम काबिले तारीफ वो टॉम लेथम की वो पारी, और उसी ने मैच डिसाइड कर दिया। जी
मुझे लगता है ना, उमरान मलिक के बारे में कुछ बोलने से पहले हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि उनको आपने लिस्ट ए क्रिकेट में कितने मौके दिए। उमरान मलिक को आपने आईपीएल से उठाया किस आधार पे कि जी इसके पास रॉ पेस है, ये पेस पे बॉलिंग कर सकता है। इंडिया के पास पेस बैटरी हमेशा से अच्छी नहीं रही है जो 150 को टच करे। 130 जहीर खान इस जमाने में थे जो 145 पर फेंकते थे, लेकिन वो शुरुआती दिन थे उनके। और कई बॉलर आए, मुनाफ पटेल भी आए, नेहरा भी आए, तमाम आए बॉलर जो 140-45 को टच करते थे अपने शुरुआती दिनों में, लेकिन इधर उधर इंजरीज हुई, फिर वो 130-125 पर आकर सिमट गए। वो भारत की हमेशा समस्या रही। तो भारतीयों को लगा ना कि उमरान मलिक उनका एक गो टू बॉलर हो सकता है। इवन अर्शदीप भी अच्छे पेस को टच कर रहे हैं, जनरेट अच्छी कर रहे हैं, वो लाइन लेंथ भी ठीक है। उमरान मलिक के साथ समस्या कहां पे है, आपने उसे T20 से उठा लिया और T20 में करने होते केवल 4 ओवर। जिस लड़के को ये पता ही नहीं है कि 10 ओवर की बॉलिंग कैसे कर सकते हैं, वो कैसे करनी है, क्या लेंथ होगी वनडे मैचेस में, क्या करेगा आके पहले मैच में वो, तो थोड़ा सा वेवर्ड लगे मुझे पर्सनली। मैं अपनी राय दूं तो, लेकिन मैं फिर भी मानता हूं कि आपको स्टिक करना चाहिए उमरान मलिक के साथ, और लिस्ट एक क्रिकेट जितना खिला सकें आप खिलाना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया की अगर आप बात करेंगे ना, तो जो वो बॉलर निकल के आते हैं ना, वो फर्स्ट क्लास की भट्टी से ही आते हैं, लेकिन फर्स्ट क्लास का जो सिस्टम भारत में है उससे बेहतर कहीं फर्स्ट क्लास का सिस्टम है भी नहीं, आप ये भी जान लीजिए। इतनी ट्रॉफीज खेली जाती हैं, इतने टूर्नामेंट्स होते हैं। अब पाकिस्तान का आप देख लीजिए, उतने टूर्नामेंट्स नहीं होते, लेकिन फिर भी फास्ट बॉलर्स आते हैं, क्योंकि उनको वो लोग तो तेज बॉलर की फैक्ट्री है आज। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बोला आपने, क्योंकि वहां से बॉलर्स आते हैं, वो अपने जो पुराने हीरोज होते हैं उनके नक्शे कदम पर चलते हैं और उनसे ही ट्रेनिंग लेते हैं। भारत में एक समस्या का जो विषय ज्यादा है, मैं समझता हूँ कि बॉलर्स के लिए अलग कोचेज होना चाहिए। कई बार आप कई दौरों पर आपने देखा कि जी बॉलिंग कोच ये है, बट मेरे हिसाब से वो बॉलिंग कोच होने चाहिए जिन्होंने अपने जीवन में वाकई में कोई पेस जनरेट की हो, पेस का उनको पता हो, भले आपको बाहर से लाना पड़े। तो शायद ज्यादा, हाँ, उमरान मलिक कई बार वसीम अकरम के टच में आए, उन्होंने बहुत कुछ सीखा होगा उनसे। मैं समझता हूँ एक मैच के बाद उनको क्रिटिसाइज करना शायद ठीक नहीं है। 2 विकेट उन्होंने लिए, रन थोड़े ज्यादा दिए। वो आईपीएल में एक गेंद की थी डेविड वार्नर को, वो सबको याद है। बिल्कुल 152 के आसपास की गेंद थी शायद, वो 152-53 के आसपास। तो वो सिचुएशन थी वहां पे, आपने देखा ही उसको। तो मैं समझता हूँ कि कोई ऐसी खास दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं इस चर्चा को। समृद्ध जी, भारतीय बैटिंग पर आते हैं। ओपनिंग कॉम्बिनेशन अभी हम अच्छा कह देंगे क्योंकि भारत ने एक अच्छी शुरुआत ले ली कि 124 रन पर कोई विकेट नहीं गिरा, उसके बाद आके 2 विकेट फटाफट गिर गए। तो इससे भी कुछ सीखने की जरूरत है, क्योंकि आप 124 तक पहुंच गए एक बगैर नुकसान के, और उसके बाद आप लगातार वो जो 1 brings 2 वाली कहावत है ना, वो आपने सार्थक कर दी कि जी एक जाता है दूसरा चला जाता है। तो इससे बचना पड़ेगा, इससे बिल्कुल बचने की जरूरत है। मिडिल ऑर्डर जो है वो हमारा शुरू से, अब आप देखो कि अगर कोई टीम 280-90 बनाती है तो फिर वो रोहित, विराट और केएल राहुल के आसपास मैच घूमने लगता है। इस चीज से हमें बचना होगा कि कम से कम देखिए, आप इंग्लैंड में देखें तो वहां तक 10 नंबर तक बैटिंग है, डेविड विली भी अच्छे शॉट्स लगा सकते हैं। तो ये चीज हमारे पास नहीं है, हमारे पास 5-6 के बाद में मामला खत्म। तो इस चीज से हमें बचने की जरूरत है, क्योंकि ओपनिंग कॉम्बिनेशन हमारा देखिए हर मामले में अच्छा रहता है। चाहे आप टेस्ट में देखो तो कभी कभी तो ठीक है, किसी के भी साथ हो सकता है, लेकिन रोहित राहुल ये अच्छी साझेदारी करते हैं। वनडे में शिखर रोहित या शुभमन रोहित, आज भी उन्होंने अच्छी साझेदारी की। ओपनर्स हमारा समस्या नहीं है, समस्या हमारी मिडिल ऑर्डर, जिसमें सुधार करने की जरूरत है। और मेरा ऐसा मानना है कि जैसे इस समय चल रहा है नंबर 3 पे श्रेयस अय्यर, 4 पे सूर्य कुमार यादव, तो अगर इस समय आप एक्सपेरिमेंट ही कर रहे हो 2023 के वर्ल्ड कप के लिए, तो फिर हार भी मिलती है, जीत भी मिलती है, सब ठीक है। पर हाँ, मौके आपको सबको देने चाहिए। और बैटिंग की जो आपने बात की, मिडिल ऑर्डर तो हमारा दिख रहा है, उसको निखरने की जरूरत तो है। रामकृष्ण जी, क्या आपको लगा किसी भी स्टेज पे मैच की कि सूर्य कुमार यादव जब तक विराट कोहली नहीं है तो क्या हम उन्हें नंबर 3 की पोजीशन दे सकते हैं, अय्यर को 4 पर रखें? हाँ बिल्कुल जी, देखिए मेरी अपनी राय ये है कि सूर्य कुमार की जहां तक बात है तो सूर्य कुमार को यदि हम 4 पे रखते हैं, क्योंकि 3 पे श्रेयस अय्यर के आने के 2 कारण हैं।
पहली बात यह है कि श्रेयस अय्यर एक डिपेंडेबल प्लेयर है। यदि कोई कोलैप्स होता है तो श्रेयस अय्यर उसको रोक सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज कि श्रेयस अय्यर समय के साथ यदि कोई तेज गेंदबाजी अटैक है तो उसको निस्तेनाबूद करने की उनके पास भी क्षमता है। उनका डिफेंस बहुत अच्छा है। वहीं उसके बाद यदि थोड़ा समय यदि निकाल लिया तो उसके बाद सूर्य कुमार पारी को एक बड़ा रूप दे सकते हैं। तो मेरे हिसाब से तो श्रेयस अय्यर ही 3 नंबर के कैंडिडेट विराट कोहली की गैर मौजूदगी में 3 नंबर की कंटेंट होनी चाहिए। लेकिन हाँ, एक चीज और है कि जो भारत सदैव कहता रहा है फेयरलेस क्रिकेट, क्या यही फेयरलेस क्रिकेट है? 10 ओवर में 40 रन, बार बार इसकी चर्चा होती है। तो मेरा कहना है कि श्रेयस अय्यर भी ही आपके टीम पे होने चाहिए। मगर हाँ, कुछ खुल के क्रिकेट खेलने की आवश्यकता है। यदि आज भारत ने 10 ओवर में 50 बनाए होते, 52 बनाए होते तो स्थिति और अच्छी होती। या यदि सूर्य कुमार ने आपके हर मैच में अच्छा किया है तो थोड़ा वक्त हमें और देना चाहिए। बाकी और इंडिया की समस्या जो फेयरलेस क्रिकेट कहते हैं वो केवल उनके कहने में है, कथनी में है, करनी में अभी भी फेयरलेस क्रिकेट का कहीं नामो निशान नहीं है। यार हाँ समझ जी। मेरा ऐसा मानना है कि देखिए 10 ओवर में 40 हूँ 50 हूँ, बात ठीक है अपनी जगह, बट 303 या 306 था जहाँ तक मुझे लगता है। तो ये स्कोर खराब स्कोर नहीं था, क्योंकि अगर हम लोग चेस कर रहे होते तो आई थिंक कि वो 60-70% को डिफेंड कर लेते ना, क्योंकि वो अपने यहाँ खेल रहे। तो इसलिए ये समस्या नहीं है। पर समस्या ये है हमारा मिडिल ऑर्डर। ओपनर्स तो ठीक है खेलते हैं, बाद में वो औसत बढ़ा देते हैं। इसलिए अगर 306 पूरा स्कोर नहीं था, जहाँ तक मुझे ऐसा मानना है। बाकी आप लोग की जो राय हो, लेकिन ये है कि मेरा ऐसा मानना है कि अगर वो होते तो डिफेंड कर लेते। बिल्कुल, क्योंकि अपने होम ग्राउंड पर थे वो। अब देखिए 160 हम लोग उस दिन चेस कर रहे थे 20 में, 75-76 पे अपने 4 आउट हो गए थे, लगातार विकेटें गिर रही थी। अगर मैच होता तो हो सकता है कि हम लोग वहां तक मुश्किल जाते। तो इसलिए जो हमारा मिडिल ऑर्डर है वो बहुत ज्यादा तगड़ी समस्या है। और हाँ, जैसा राम किशन जी ने कहा कि ओपनरों को थोड़ा फास्ट खेलना चाहिए। बेशक वो रन 280-90 बने बाद में वो मायने नहीं रखते, लेकिन यह है कि ओपनिंग कॉम्बिनेशन जो है वो हमारा थोड़ा और फास्ट होना चाहिए। जैसे T20 में आप देख लो, पावर प्ले में वर्ल्ड कप में बन रहे थे 30, 36, 42, तो ये नहीं, इससे फास्ट होना चाहिए। बिल्कुल फेयरलेस क्रिकेट वही होती जो इंग्लैंड करके दिखा रहा था। आप कहते हो कि हम फेयरलेस क्रिकेट हमें खेलना है तो फिर वो चीज झलकनी चाहिए। करेक्ट। अगर इंग्लैंड ने वर्ल्ड कप जीता, ठीक है, मान लिया वो वर्ल्ड कप जीते, तो उन्हें वर्ल्ड चैंपियन कहने में अच्छा लगेगा कि वो हार जाते हैं, बट वो जिसके भी साथ क्रिकेट खेलते हैं ना, आप देखो यार क्या क्रिकेट खेलते हैं, हर किसी के साथ वो एक चैंपियन की तरह क्रिकेट खेलते हैं। बिल्कुल। तो ये हम लोगों में अभी नहीं है, हम लोगों में सुधार की जरूरत है, ये हम लोग को करना चाहिए, हम ऐसा मानते हैं। ऋषभ पंत, संजू सैमसन, दिनेश कार्तिक, 3 कैंडिडेट विकेट कीपर बैट्समैन के लिए लगातार आईसीसी के कुछ अवार्ड्स के बाद इन तीनों के नाम आईसीसी ने दिनेश कार्तिक के बारे में एक ट्वीट किया था, जल्दी से मैं इसलिए बता रहा था। आईसीसी अवार्ड, उसको आप अवार्ड नहीं कह सकते सही शब्दों में, तो कि दिनेश कार्तिक ने एक अच्छा रिटर्न किया एक्चुअली। तो मुझे लगा कि दिनेश कार्तिक क्या सही कैंडिडेट हो सकते हैं विकेट कीपिंग के साथ बैटिंग के लिए, क्योंकि देखिए ऋषभ पंत जो मैं समझ पाया, शायद वो आपके लंबे फॉर्मेट के क्रिकेटर कम से कम मुझे नजर नहीं आते। ठीक है, टेस्ट मैचों में उनकी कुछ अच्छी पारियां हैं, आप ये नहीं कह सकते, लेकिन वो पारियां भी बड़े फेयरलेस अंदाज में खेली गई, बड़ी जल्दी खेली गई। वो ऐसा नहीं कि ऋषभ पंत आपको 2 दिन टिक के खड़ा बिता सकते हैं, आई डोंट थिंक। तो क्या आपको लगता है कि ये इनकी जगह पे किसी और को एक वनडे में मौका दिया जा सकता है? मुझे नहीं लगता।
दिनेश कार्तिक एज ए T20 मतलब अच्छे बैट्समैन, बट रामकिशन जी इसके बाद आप अपनी राय हमें ये रखिएगा। नहीं भूलना होगा कि गाभा में जो इतिहास हुआ था वो ऋषभ पंत, वनडे श्रृंखला हम लोग जब इंग्लैंड में जीते तो ऋषभ पंत, दक्षिण अफ्रीका में हम लोग टेस्ट श्रृंखला हारे जरूर, पर अगर 170-80 पे आउट हो रहे हैं तो 100 बना रहे हैं ऋषभ पंत। तो इसलिए कार्तिक T20 में तो अच्छे बैट्समैन हैं, इसमें कोई शक नहीं। बट क्या है कि आप कुछ दिन से IPL में KKR का इतिहास उठा के देख लो, वहाँ दिनेश कार्तिक को देखो, या जहाँ दिनेश कार्तिक खेल रहे हैं, तो वनडे के लिए मुझे नहीं लगता। भैया कभी खाई नहीं होगी। हेलो, खाना खाने को क्या सम्राट जी, आपने अपनी राय रखी, मेरी भी अपनी राय है कि मुझे लगता है कि ऋषभ पंत को हमने काफी मौके दिए हैं। मुझे लगता है कि अब ऋषभ पंत के लिए ठीक है, हमने काफी मौके दिए और संजू सैमसन भी दस्तक दे रहे हैं। मुझे लगता है कि हालिया फॉर्म को देखते हुए हमें फिलहाल संजू सैमसन के साथ कंटिन्यू करना चाहिए। देखिए ऐसा है, आजम सर ने दिनेश कार्तिक और ऋषभ पंत ने पूछा था, अगर वो तीनों में पूछते तो तीनों में मैं मानता कि संजू सैमसन ने। और रही बात दिनेश कार्तिक की, तो दिनेश कार्तिक ने तो अभी संन्यास का भी ऐलान कर दिया है शायद। नहीं, मैं नहीं मानता, वनडे के लिए मैं फिट नहीं मानता। जी हाँ, उन्होंने संन्यास का भी ऐलान कर दिया है। अभी 1 से 2 दिन पहले की ये न्यूज थी। तो खैर हम आगे चलते हैं। सम्राट जी बताइए, आप जी कहाँ ऐसा लगा आपको कि भारत के हाथ से मैच निकल गया है? देखिए, मुझे टॉम लेथम जब बैटिंग करने आए, विलियमसन तो ठीक है, टिकाऊ प्लेयर हैं हम, लेकिन टॉम लेथम क्या है ना कि वो इंडिया के चाहे बाहर खेलें चाहे इंडिया के अंदर खेलें, वो हमेशा अच्छा खेलते हैं टॉम लेथम अगेंस्ट इंडिया। तो मुझे वहाँ से 25 ओवर, देखिए 20, 25, 30 ओवर तक मैच हमारे हाथ में था, क्योंकि 7.5-8 के लगभग रन रेट चाहिए थे। लेकिन जब कुछ ओवर शार्दुल ठाकुर के थोड़ा वैसे पड़े, एक ओवर में 25 या 28 पड़े थे, जहाँ तक मुझे ठीक से नहीं याद है। जी हाँ, 25 रन पड़े थे। तो वहाँ के बाद जब 12-12, 13-13 रन हर ओवर से निकल रहे थे, तो वहाँ से मुझे लगने लगा था, मतलब 35वें ओवर से मुझे लग गया था कि अब हार गए। हाँ, चलिए, अब एक और पहलू पे चर्चा करना बहुत जरूरी मैं समझता हूँ, वो ये है कि भारत ने बैटिंग की जी, क्या भारत ने जो बैटिंग की शुरू में 4 विकेट एक झुरमुट में एक ताश के पत्तों की तरह ढह गए। पहले दोनों ओपनर चले गए, उसके बाद एक ही ओवर में सूर्य कुमार यादव और 5वीं गेंद पे एक और खिलाड़ी आउट हुए, ऋषभ पंत। तो क्या आपको नहीं लगा कि कहीं न कहीं ये 300 जो कि 320 होना चाहिए था, 306 पे सीमित हुआ स्कोर, इसकी वजह क्या ये नहीं लगा कि आपको ये 4 विकेटों का जो पतझड़ हुआ वो भी इसकी वजह है? बिल्कुल इसकी वजह बिल्कुल है, क्योंकि देखिए मिडिल ऑर्डर हमारा शुरू से फ्लॉप रहा है। अगर एक विकेट गिरता है ना, तो तू चल मैं वाली स्थिति हो जाती है भारत में। ये कह सकते हैं कि कुछ कंडीशंस देखिए, जैसे ऑकलैंड के छोटे छोटे मैदान है न्यूजीलैंड में, ये जहाँ मैच था, तो ये चौको छक्कों के लिए अच्छा मैदान था। लेकिन क्या है कि हमारे साथ, हमारी भारतीय बैटिंग के साथ क्या समस्या है कि आ बैल मुझे मार वाली समस्या है। अगर एक ओपनर आउट होते हैं तो फिर खट 3-4 विकेटें गिरती हैं। वहाँ से मान लीजिए कि आपके 50-60 रन कम हो जाते हैं। वो जो 2 विकेटें गिरी ना, वहाँ से कम आपने 30-35 रन अपने कम बनाए, जो कि लग रहा था कि 330 के आसपास। अरे यार, खाना खा रहा हूँ यार, तो ये सुधार की जरूरत है। जी। तो चलिए, अगला मैच 27 तारीख को खेला जाएगा, जो कि
हाँ, अगला मैच 27 तारीख को खेला जाएगा। तो अभी फिलहाल 1-0 की बढ़त बना ली है न्यूजीलैंड ने भारत से। तो क्या आप समझते हैं भारत क्या पलटवार करने में सक्षम है? देखिए, भारत पलटवार करने में सक्षम है, मैं मानता हूँ। बट क्या है कि स्पिनर्स हमारे वहाँ चल नहीं रहे, और जो हमारी तेज गेंदबाजी है, आज उमरान मलिक को अगर 10 ओवर में 65-60 पड़ भी गए रन ना, तो मैं नहीं मानता कि वो बहुत बुरी बात है। क्यों? अपना डेब्यू मैच खेल रहे हैं। डेब्यू मैच में अगर खिलाड़ी को 60-70 रन भी पड़ जाएं और उसको अगर पहला विकेट मिल जाए, तो आप क्या जाने कि उसको कितनी खुशी होती है रामकिशन जी। ये दिल की गहराइयों से एहसास किया जा सकता है। अब बैट्समैन भी कौन कौन थे? फिन एलन और डेरन मिचेल, सॉरी जी हाँ। तो अगर कैरियर में आप इतने बड़े बड़े नाम आउट कर रहे हैं, बेशक 2 ही सही, परंतु आपके, क्योंकि क्या होता है कि कुछ लोग डेब्यू मैच खेलने के बाद भी 10 मैच तरस जाते हैं, विकेट नहीं मिलती, लेकिन अपनी काबिलियत से विकेटें उनको मिली। तो मैं मानता हूँ कि आप ट्राई तो कर ही रहे हो, ट्राई में आप हार भी सकते हो, जीत भी सकते हो, तो मौके देने चाहिए। और नहीं, जो मुझे लगा ना कि उमरान मलिक मैच में जी, हाँ कंटिन्यू करिए आप। अगले मैच में मुझे लगता है अगर आप कुलदीप को ले गए, तो आपको कुलदीप को खिला लेना चाहिए बॉलिंग के लिहाज से। बट किसकी जगह? देखिए, वाशिंगटन सुंदर ने आज अच्छी बैटिंग कर दी ना, तो इसका अर्थ ये नहीं कि वो अच्छी बैटिंग, क्योंकि बॉलिंग में आप उनको देखो हमेशा। अगर आप आईपीएल भी कवर करते हो, तो आप वहाँ भी वाशिंगटन सुंदर को देख लो कि बॉलिंग में वो धार, वो विकेट लेने का जो जुनून है ना, वो नजर आता नहीं। अब बैटिंग भी ये जो कहते हैं कि कोई दिन हाथी, कोई दिन घोड़ा, कोई दिन पैदल चलना जी, तो ये बैटिंग में भी वो खौफ नजर नहीं आता। आज चल गए, एक अलग बात। देखिए, आप जो कह रहे हो वो बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन एक चीज और है कि वाशिंगटन सुंदर का एक प्लस पॉइंट है जो मैं समझ पाया हूँ। पता नहीं आजम जी ध्यान देंगे कि नहीं, बैटिंग की बात नहीं कर रहा, कि वाशिंगटन सुंदर आपको पावर प्ले में बॉल डाल के दे सकता है। वो पहला ओवर भी डाल सकता है, जो उसने कई बार किया, वो दूसरा ओवर भी डाल सकता है। और ये बहुत कम लोगों के अंदर एक काबिलियत है, जो कि मुझे लगता है कुलदीप यादव थोड़ा सा झिझक महसूस करते हैं। और फिर यदि कुलदीप यादव को भी रन पड़ गए, तो आप आखिरकार नहीं, देखिए अब ये अगर इस तरह में आप जाएंगे कि इसको रन पड़ गए, उसको रन पड़ गए, तो ये तो जीवन में कभी चीज समाप्त हो ही नहीं सकती। अब आप बुमराह आपके पेस बॉलर हैं, अच्छे बॉलर हैं। लोग कहते हैं अगर कोई भारत मैच जीत जाता, लोग कहते हैं यार बिना बुमराह शमी के जीत गए, लेकिन कई बार बुमराह को भी 10 ओवर में 80-90 पड़ जाते हैं। वो एक अगर मगर वाली बात तो दूसरी हो गई। नहीं, बात वही है कि फिर वाशिंगटन सुंदर के पास आप जाएंगे, जब एक मैच खराब जाएगा, फिर आप उन्हीं के पास जाएंगे। तो मुझे लगता है कि यदि आपने किसी को खिलाया है, तो पूरी श्रृंखला खिलानी चाहिए, उसके बाद आप जज कर पाएंगे। किसी एक मैच से आप ये जज नहीं कर सकते कि कहीं ना कहीं उनकी काबिलियत में कोई समस्या है, या आप बैटिंग के लिए केवल उनको प्रमोट कर रहे हैं। ये मेरा अपना विचार है। खैर, ठीक कह रहे हैं। मैं समझता हूँ उमरान मलिक पर हम डिस्कस कर रहे थे, तो उमरान मलिक को जैसे जैसे मौके मिलेंगे वो अच्छा करेगा। इट्स ऑल राइट, ही इज अ वेरी गुड टैलेंट। तो उन्हें जरूरत क्या है, भारत को ठीक से मैनेज करने की और ठीक हाथों में देने की। ये देखना पड़ेगा वो किसके हाथ में है। अभी वीवीएस लक्ष्मण और राहुल द्रविड़ जैसे लोग भारत को कोच कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कोई बॉलिंग एक होना चाहिए, जो बॉलिंग कोच हो, जो बेहतर तरीके से समझे उनकी स्किल को, तो वो शायद ज्यादा बेहतर होगा। खैर, आई थिंक वी आर डन टुडे। बहुत डिस्कशन हमने कर लिया। मेरी अगर अपनी राय अगर आप लेना चाहो तो टीम में क्या बदलाव, मैं अभी भी शार्दुल ठाकुर की जगह पे मोहम्मद सिराज को देखता हूं, क्योंकि भारत की बैटिंग उतनी ज्यादा समस्या नहीं है। मोहम्मद सिराज होने चाहिए। हाँ बिल्कुल, उतनी बैटिंग समस्या नहीं। शार्दुल ठाकुर भी आपको रोज रोज बैटिंग करके नहीं देंगे। शार्दुल ठाकुर हमेशा बैटिंग अच्छी नहीं कर रहे। वो देखिए, टेस्ट मैच एक अलग चीज हो गई, लेकिन मोहम्मद सिराज आपको विकेट देंगे ही देंगे। करेक्ट, वो अच्छे जेन्युइन बॉलर हैं। तो ठाकुर में कोई कमी नहीं है, ऐसी बात नहीं। ठाकुर विकेट लेते हैं, लेकिन
कई बार क्या होता है ना, आप एक उभरती हुई प्रतिभा है तो उसके साथ आप नाइंसाफी नहीं कर सकते, तो मुझे लगता है सिराज के साथ स्टिक करना चाहिए आज के लिए। मुझे लगता है सिराज को खिलाना चाहिए बात। आज के शो में मुझे लगता है काफी है। अब समरथ जी, हम एक सवाल पूछते हैं शो के अंत में, तो आज के लिए वो जिम्मेदारी आपकी है। क्रिकेट इतिहास से आप कुछ भी एक सवाल पूछ सकते हैं। नहीं, आज आप पूछिए, कल हम पूछेंगे। रामकिशन जी, रामकिशन जी आप पूछो। चले पूछें। तो ये जो सवालों की श्रृंखला है उसमें यदि हम बात करें तो आज का सवाल कुछ इस तरह से है जिसको कि यदि आप हिस्सा लें, सवालों के जवाब देने में आप इंटरेस्ट रखें, उनके लिए जो आज का सवाल है वो ये है, भारत के लिए सबसे तेज 50 विकेट, भारत के लिए सबसे तेज 50 विकेट एक दिवसीय में किस गेंदबाज ने लिए हैं? यानी सबसे तेज अंतरराष्ट्रीय 50 विकेट वो भी एक दिवसीय क्रिकेट में भारत के लिए किस गेंदबाज ने लिए हैं? इस सवाल का आप जवाब दें और आप कमेंट बॉक्स में, हमारे कमेंट सेक्शन में, यूट्यूब में जाके जवाब दें, और उसके बाद आप में से जो भी लोग ज्यादा जवाब सही देंगे उनमें से चुनाव करके हम उनको आकर्षक पुरस्कार से नवाजेंगे। जी। Well, the question is for today's show, which of the Indian faster bowler or spinner bowler, you can include anyone, has taken 50 wicket fastly? ये आपको बताना है सबसे तेज, चाहे वो स्पिनर हो चाहे फास्टर, ऐसा कुछ स्पेसिफिकली नहीं पूछा गया आपसे, ठीक है? अच्छा, हम भी बता सकते हैं ना? नहीं, आप नहीं बता सकते। बस क्योंकि आप बता सकते हैं, आपको पुरस्कार नहीं मिलेगा। ना, हम आज हमको बता देंगे बाद में। चलो जी, बड़ा अच्छा लगा आपके साथ शो करके, 2 लोगों के साथ एंजॉय किया। कल से और मजा आएगा। बस एक गुजारिश आप दोनों लोगों से, अपने आप को ऐसे जगह पर रखें जहां पर थोड़ा शोर शराबा कम हो, जिससे आपकी आवाज दर्शकों को सुनने में आसानी हो। खैर, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बस इतना ही इस अंक में। तो अब हम तीनों लोगों को, हमारी पूरी टीम को तो इजाजत दें। कल फिर मुलाकात होगी, अगले सेगमेंट में फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम के साथ, इसी YouTube चैनल पे। तब तक के लिए नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि।